Hello and welcome to We Express Sports, and we are here to talk about the post-match and the game between the Chennai Super Kings versus the Sunrisers Hyderabad, the Orange Army versus the Whistle Kodu. And before the start of the game, it had an interesting scenario, even though it's very early in the tournament. We were talking about the two teams who are the bottom of the table. Generally, we see them very high up the table. Playoff spot is something that they are, most likely to have. But it was interesting to see the two teams at the bottom to face it out. And what an interesting game we had. The under 19 boys made it big. The likes of Priyam Garg, Indian under 19 captain Abhishek Sharma, got them out of trouble. And then the Sunrisers Hyderabad bowling. They had a little bit of worry. They have a little bit of worry with the likes of Bhuvneshwar Kumar getting injured. But let's hope that he comes fit again. But brilliant win for SRH. It was a close game in the end. Let's talk about the game in much more detail. And today we have for Chennai Super Kings, Mr. Ankit, and for Sunrisers Hyderabad, we have Vijay. And we'll start with Ankit, who's looking a little disappointed. Ankit bhai, I mean, after 6 days, last match against DC, I think they lost the game. Then a 6 day break, we were thinking, काफी कुछ changes होंगे. We were hoping that they come back much stronger. Let's talk about the team selection. Ambati Rayudu coming in, which was much required. Someone like Advent Bravo fit again coming into the game, and Shardul Thakur. Two of the changes make sense, but very disappointed कि Imran Tahir जैसे legend को अभी भी जगह नहीं मिल रही टीम में. मैं भी सरप्राइज हूँ फॉर दिस थिंग कि अगर ऐसे बॉलर जो विकेट निकाल के दे रहे हैं वो मिडिल में आके दे रहे हैं, मिडिल ओवर्स में आपको विकेट लाके देते थे इमरान ताहिर, और ज्यादा रन भी स्कोर नहीं करवाते थे अपने बॉलिंग में, एंड वो मिस कर रहे हैं. मेरे लिए जो टीम सिलेक्शन में सबसे बड़ी, अभी तक 4 मैचेस हो गए हैं आज, तो सबसे बड़ी बात रही है कि आपने स्टार्टिंग में 2 मैचेस में ऋतुराज गायकवाड़ को चांस दिया. आप केदार जाधव को दे रहे हो चांस, ना उनसे आप बॉलिंग करवा रहे हो. फील्डिंग आपको पता है कि क्या हाल है. बैटिंग में उन्होंने आई डोंट थिंक कि लास्ट काफी 18 महीना, मतलब 20 महीनों में कुछ ऐसी परफॉर्म कर रही होगी, या वो इंडियन टीम के लिए हो चाहे चेन्नई के लिए भी हो. मुझे तो याद नहीं है कि आखिरी बार केदार जाधव ने कभी परफॉर्म करा था. आपने हेजलवुड को लेकर के आए आप लास्ट गेम में, आज वो नजारे थे आपके टीम से. तो मुझे लग रहा था कि मेरे जो 4 फॉरेन प्लेयर्स होंगे उसमें मैं पता नहीं क्यों मेरा था कि शेन वॉटसन को मैं बाहर करता और मैं ऋतुराज गायकवाड़ को चांस देता. अंबाती रायडू के साथ मैं फेफ डू प्लेसिस को खिलाता, और शायद हेजलवुड को लेके टीम में चलूंगा, क्योंकि आपने देखा, और आज वही बात है कि आप वो टीम में, मतलब आप मिस कर रहे हो. आप आज तो पहली जल्दी विकेट भी मिल गई थी, बट वो उसका कोई फायदा नहीं उठा पाया. पनीश पांडे को आपने आराम से चौके मारने दिए, सब कुछ करने दिया. सो मुझे लगता है कि थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे. और हाँ, ऑफ कोर्स रैना की कमी तो खल रही है, वो दिख रहा है, झलक के दिख रहा है. जो उनका बैलेंस था मिस्टर आईपीएल, वो काफी बड़ा एक जो स्पॉट खाली हो गया है, तो वो तो सामने दिख रहा है. बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसा समझ आ रहा है चेन्नई की टीम में करंटली बिफोर द आईपीएल, बट during this IPL as well. But moving on to SRH, Vijay, coming on to the SRH team, David Warner wins the toss, selects to bat first. He thinks that's the best way to go, and no changes in the team. Were you surprised, or were you expecting, for the team to continue with the same lineup? No, actually batting, winning the toss and batting is actually good right now, क्योंकि हमने जितना भी देखा है, अगर आप टॉस जीत के फील्डिंग लेते हो, फील्डिंग लेने के बाद प्रॉब्लम ये होता है कि अगर पहली टीम ने ज्यादा स्कोर कर दिया, बोर्ड पे अगर 180 या 200 भी मार दिया, जैसे हमने आरसीबी का केस देखा था पंजाब को, यू कैन क्रम्बल. एंड एसआरएच की बैटिंग ऑर्डर इतनी स्ट्रेंथ, उनकी मिडिल ऑर्डर में स्ट्रेंथ एक्चुअली नहीं है, क्योंकि दे आर टॉप हेवी. अगर उनके बेस्टो, विलियमसन और वार्नर में से अगर कोई एक फायर नहीं करते, तो देयर आर वेरी स्लिम चांसेस दैट दे विल विन. और आज वही हुआ. आज उनके तीनों बैट्समैन एक्चुअली टॉस जीत के बैटिंग करने के बाद भी तीनों बैट्समैन एक्चुअली फायर नहीं किए. पांडे की नॉक से थोड़ी सी स्टेबिलिटी उन्हें मिली, बट उधर जब विलियमसन रन आउट हुए, एक्चुअली दैट पॉइंट वुड हैव बीन क्रूशियल अगर प्रियम गर्ग वो नॉक नहीं खेलते आज. एंड अगर वो नॉक के चलते उनकी एक्चुअली सीट, मतलब जो उनकी सीट प्लेइंग 11 में वो बच गई, वरना देयर वर चांसेस दैट दे वुड रिप्लेस हिम विद विराट सिंह, व्हिच इज वन मोर टैलेंटेड यंगस्टर, एंड ही कैन कंट्रीब्यूट मोर टू द टीम.
And talking about that particular partnership, like someone like a Priyam Garg and an Abhishek Sharma, young boys, we talk about IPL as a, tournament which is meant for youngsters to give opportunity. How happy and how satisfied you were today as an SRH fan to see those two youngsters just take the game away from like a champion team like Chennai Super Kings? Like I was more satisfied because first of all हमारी मिडिल ऑर्डर ने मतलब गेम बनाई. अभी तक जितने मैचेस रहते हैं हमारे अपनी मिडिल ऑर्डर के चलते हार रहते हैं, पर आज हमारी मिडिल ऑर्डर ने वो पर्टिकुलरली वो पार्टनरशिप के चलते हम ये मैच जीता. लाइक एक्चुअली टर्निंग पॉइंट अगर बोला जाए फर्स्ट इनिंग्स में तो उनकी पार्टनरशिप ही थी. अगर वो पार्टनरशिप नहीं होती तो हम हमारे पास चांस होते ही नहीं. लाइक फ्रॉम 2016 अगर देखा जाए तो एसआरएच के पास बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है. हमारी बॉलिंग एक्चुअली फर्स्ट 2 मैचेस में उतनी अच्छी नहीं क्योंकि भुवनेश्वर को स्विंग नहीं मिल रही थी. हम अगर पिछले एक मैच से देखें भुवनेश्वर को स्टार्टिंग में जो स्विंग मिल रही है दैट इज बेनिफिशियल बिकॉज अगर उन्हें स्विंग मिलती है तो वो गारंटी आपको एक विकेट लेके देते हैं. और वो बहुत ही इकोनॉमिकल है स्टार्टिंग में और उनकी डेथ बॉलिंग बहुत ही अच्छी है. लिटिल बिट वो डिग्रेड हुए बट ओवरऑल बहुत अच्छी बॉलिंग है उनकी. एंड वो पार्टनरशिप देख के लाइक आज का बेस्ट मोमेंट होगा वो पार्टनरशिप. और अब्दुल समद को लास्ट में बॉल देना और उन्होंने लाइक वो एक्सेप्ट करके कि हाँ मैं बॉल डालूंगा, दैट इज द बेस्ट थिंग. That was a huge gamble he took. I was hoping that maybe he will, bring someone like an Abhishek Sharma, but Abdul Samad, put his hand up and went. And we're hoping that Bhuvneshwar Kumar stays fit. But talking about Chennai Super Kings, Ankit bhai, aapse baat, like they lost the match. It was a close one. They lost by 7 runs. But more than that, it was the manner of the defeat. जैसे वो हारे हैं काफी मैचेस. Like ये हमने apart from the Mumbai Indians game, अगर मैं निकाल दूँ, अभी तक के जो मैचेस हुए, they have been lagging. Like the momentum जो चाहिए रहता है middle में कि कोई आके quick fire strokes खेले. Like Ambati Rayudu did that in the first game. They have been missing that in the complete tournament so far. So do you think like is it like a psychological thing maybe right now कि they just can't score that quickly in the middle overs जिसकी वजह से पीछे pressure पड़ता है, or do you think it's just a phase? No. The thing is कि आप देखो ना लास्ट 3 मैच में जो कंसिस्टेंट रहा है वो फैफ डू प्लेसिस रहा है, राइट? आप एक बैट्समैन से आप मैच नहीं जीत सकते ना. आपकी ओपनिंग में जब अंबाती रायडू फर्स्ट मैच में उन्होंने स्कोर किया, 2 मैच से वो मिस कर रहे थे, तो मुरली विजय को मौका मिला. मुरली विजय ने क्या किया आपको ही पता है, जो भी है टीम सिलेक्शन जो भी है उन्होंने परफॉर्म करके नहीं दिखाया. प्रेशर किस पे आ रहा है आखिरकार? फैफ डू प्लेसिस पे. आज क्या हुआ, एक गलत अब मैं वही बता रहा हूँ, इम्पैक्ट की बात बता रहा हूँ. फील्डिंग में जडेजा बॉलिंग सब दिख रहा है, वो झलक के दिख रहा है कि वो इतना बड़ा प्लेयर है और वो फील्डिंग में नहीं कर रहा है. और बैटिंग देखो ना, आप 18 बॉल पे पहला चौका, फैफ डू प्लेसिस आउट हो गया. एक गलत डिसीजन, रन आउट जो भी है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक होगा वो, बट मैं एक बार चेक करना चाहूंगा रूल बुक क्या कहती है. वो रन आउट मतलब मुझे दिख रहा है, अंपायर के मन में क्या है आई डोंट नो. उसके बॉल लगी है विकेट से, बेल्स नहीं उड़ी है, उसका हाथ लगा है, उड़ा है, तो आई डोंट नो. उस टाइम उसके हाथ में बॉल भी नहीं था, तो किस तरह से डिसीजन हुआ है. बट कहीं ना कहीं हम फेल कर रहे हैं. और मुझे एक चीज और लग रही है कि जब आप प्रेशर बनाते हो, आप 13 ओवर में 70 रन दे रहे हो, 4 विकेट गिरा चुके हो, आप 6 ओवर में आकर के अगर 90 रन खाते हो और लास्ट के 4 ओवर में यार 60 रन आप लूज कर रहे हो, आप दे रहे हो, तो ये हर मैच में हुआ है. आप मुंबई वाले मैच में भी हुआ था. मुंबई वाले मैच में हमने थोड़ा कंट्रोल कर लिया, बैटिंग अच्छी हो गई, चलो ठीक है. सेकंड मैच में आप क्या बोलते हैं, डीसी और एक और मैं राजस्थान रॉयल्स में भी हुआ था कि हम कमबैक कर चुके थे. माना कि ग्राउंड छोटा था, 180 लास्ट ओवर में, आई थिंक लास्ट के 2 ओवर में हमने बहुत मार खाई. लास्ट ओवर में हमने 30 रन के आसपास करीब 28-30 रन मार खाए गए. वहां 185 से 216 हो गया. हम 200 हमने स्कोर कार्ड डाला था. फिर जब डीसी की बात आई तो डीसी में भी मेरे को लगता है कि लास्ट के 3-4 ओवर में हम कहीं ना कहीं मार खाए. तो वो जो 20 रन का एक्स्ट्रा है ना, वो हमें करे हमारी बैटिंग लाइन. आप वही मैं बोल रहा हूँ, जादव क्या कर रहा है बीच में, मिडिल ऑर्डर में क्या कर रहा है? अगर 3 विकेट गिर रही है तो जादव क्या कर रहा है? कुछ नहीं. आपने रन आउट कराया फैफ डू प्लेसिस को, और आप मतलब 1-2 ओवर खेल करके 7-8 बॉल करके अगर आप 2 रन मार करके आउट हो जाते हो, तो समझ रहे हो प्रेशर क्या है. और हम सबको पता है कि धोनी अपने फॉर्म पे नहीं है. ऑब्वियसली जो एज है वो फैक्टर है. वो अभी वो आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप 30 बॉल पे 70 रन मार के दे, जैसा हर साल होता आया है चेन्नई के लिए, वो इंडियन टीम के लिए. तो उनको थोड़ा वक्त लगेगा. आज हमने देखा कि बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे.
ज्यादा सबसे मुझे अचरज यही लगी कि ज्यादा जोर से मारने की कोशिश कर रहे थे कि उनके बल्ले पे आ नहीं रहा था। अगर जिस दिन बल्ले पे आने लगा तो उस दिन की बात अलग होगी, बट बैटिंग तो रैना, मैंने जैसा कहा, रैना की कमी खल रही है। ऋतुराज को चांस मिलना चाहिए, केदार जाधव बिल्कुल भी टीम में नहीं होनी चाहिए, मुझे तो देखना ही पसंद नहीं है। सो केदार जाधव नहीं होने अगर चाहिए, अगर अगर ऋतुराज शुड कम इन। चेन्नई की आप हिस्ट्री देखोगे तो चेन्नई की हिस्ट्री में बद्रीनाथ जैसे प्लेयर, कोई ना कोई ऐसा एक प्लेयर रहता है जो कि आप जब भी 2 विकेट जल्दी गिरती थी चेन्नई की, बद्रीनाथ यूज्ड टू कम एंड लेके जाता था मैच। फिर लेटर ऑन आज 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 मुझे सरप्राइज हुआ कि अगर आप जडेजा को लेके आए चौथे विकेट गिरने के बाद, क्यों नहीं सैम करन? सैम करन तो आपके फॉर्म में भी थे। तो सवाल तो उठे, सवाल तो है काफी सारे। एज ए फैन बुरा लगा, बट सवाल ये सारी है कि आप 1-2 मैचेस में चांस देते हो, फिर उसके बाद अब धोनी भैया हैं तो बहुत ज्यादा नाखुश चेन्नई फैन, जैसा कि आप देख बिल्कुल सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे। बट बिल्कुल Vijay, I'm going to come to you. Like you said that the partnership was a crucial moment. That was a turning point. But more than the partnership between Priyam Gar and Abhishek Sharma, how important was the spell of someone like a Rashid Khan? First spell 3 overs 5 runs, and the last over he bowled, he gave only 7. 4 overs 12 runs. How important is he to this lineup? And it's like when the wickets fell and Dhoni came into bat, as well as like Jadhav, when Jadhav came, that particular जब उस particular time पे राशिद को बॉल देना, क्योंकि we know people like चेन्नई के जो बैट्समैन है, मेन बैट्समैन, like beat Dhoni, except Faf as of now, beat Dhoni or beat Jadhav, they struggle against spin. okay. राशिद खान उन्हें शटल, मतलब एक्चुअली शटल उन्हें दिया ही नहीं उन्हें एक्चुअली। सो वो कॉन्टेक्स्ट में उनका स्पेल और भुवी का स्टार्टिंग स्पेल, Okay. जब उन्होंने वॉटसन को आउट किया था, लाइक दैट सेट द मोमेंटम फॉर द बॉलिंग थिंग। Exactly. So Rashid's spell and Bhuve's opening spell was really crucial. Now, again, I know you're very angry today with this film, but I'm gonna ask you to just calm down for a moment. And if there was a little positive, Jadeja's inning, he came in really handy at the end. But if you have to look at the Chennai Super Kings team, and think about one player who you think really did well and was the most expressive player today for the Chennai Super Kings, who would that be? आई थिंक ब्रावो ने ठीक ठाक परफॉर्म करा है। आई एम स्टिल नॉट हैप्पी विद द जडेजा थिंग, सो आई वोंट से जडेजा, आई वोंट टेक हिज नेम, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हो तो आपसे ऑलराउंडर हो, आप नंबर 1 रह चुके हो, सो आपसे तो बनता ही है। और रही बात 2-3 चीजों की, कि जब राशिद बॉलिंग करने आए थे तो आप सिंगल नहीं निकाल पा रहे हो। सो आप 6 ओवर में 38 पे 3 विकेट हो और वहां पे 10 ओवर में आप 42 पे हो, तो वो जो सिंगल निकालने बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप किसी भी चाहे वो कोई भी हो, खासकर शॉर्टर फॉर्मेट में। सो वहां पे काफी है मेरे लिए तो फिर ब्रावो। Dwayne Bravo, the most हाँ impressive one. सॉरी, Okay. सैम करन भी, और दोनों सैम करन और ड्वेन ब्रावो। Dwayne Bravo and Sam Curran, the two all-rounders. हाँ, Vijay, हाँ. it's going to be a difficult one, but I'm going to ask you to select one. Most expressive one, I think it's the two obvious one. Priyam Garg or Rashid Khan? You have to select one as which one? As an Indian, plus as to like how Priyam Garg performed today, like after Williamson run was run out when they were both on the crease, and after that how he handled that pressure and how he played the shots, actually it's like CSK has a good quality bowling lineup. It's not like some other team who have some weak bowlers and all. So Priyam Garg stands out today, like literally he stands out. So Priyam Garg is your most expressive player? Yeah. Oh, Rashid Khan. Brilliant, guys. It was a wonderful match. It was wonderful having you. Great victory for SRH, and lovely to see the Indian guys doing well in this tournament. But thanks a lot, guys. Thank you very much for coming over here. And that's it from the Postman's analysis over here. Thanks a lot. Thank you.